Assalamu alaikum everyone. I welcome you all once again to the Society of Educators. This is session number 39th, the class of communication skills, development and learning. Quick recap of what we have learned earlier. We had a discussion about pronoun agreement. So where we did I think 10 sentences belonging to different pronouns in order to understand the rules and uh, construction and structure of a sentence in regards with pronoun. So today we will continue with the discussion on construction and this structure of sentences. But today the topics are parallelism in sentences and modifiers in sentences. So like yesterday, this will also be an exercise. There will be some sentences you have to figure out which one is correct and which was is incorrect, and you have to give an explanation about the sentence. I mean, the sentence you have selected, you have to explain it to me. Why is it correct, or why is it not correct, or why have you selected a particular sentence out of those the two options that are given to you. Uh, so let's start with it. The first sentence is, see, this is a discussion about parallelism and modifiers. So you have to first understand what kind of sentence construction and structure thing are we looking for. So the first sentence is Sonia has wit, charm, and she has an extremely pleasant personality. The second one is Sonia has wit, charm, and a pleasing personality. So one is in green and one is in yellow. You have to just let me know which one is correct. Green one is correct or yellow one is correct. Which one is correct? The yellow one is correct. Yellow one is correct. Why? Because in the green one, there is an extra telling about the third thing which she has. So, wit and charm is just said, and the other thing is well explained. So, in the second one is correct because each one is told, only the first thing is told, wit, charm, and pleasing. So, the second one is correct. You are looking at it in regards with modifiers or in regards with parallelism. Parallelism. चलो ठीक है. So let's see the answer. The second one is correct, absolutely correct. So once again, Mariam is absolutely correct. Let's go to the second sentence. In English class, David learned to read poems critically and to appreciate good prose. The second one is, in English class, David learned to read poems correctly and he appreciated good prose. So there is only a difference of to and he. Which one is correct, green or yellow? देखो आज लोग ज्यादा नहीं आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सब पार्टिसिपेट करो इसमें अच्छे से. Uzair, you have an answer for that? Yes, sir, I'm little bit confused. Actually, sir, I hadn't joined your sessions when uh, you were teaching these topics. कोई बात नहीं, इन दोनों में से But कौन सा सही लग रहा है? uh, चलो मैं एक रूल आपको समझाता हूँ उसे, इससे आपको अच्छा समझ आ जाएगा. सी, देर आर टू थिंग्स दैट वी लुक एट वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए सेंटेंस. जब भी कोई सेंटेंस हमें बनाना होता है ना, तो हम दो चीजों का ख्याल रखते हैं. एक पैरेललिज्म का या पैरेलल स्ट्रक्चर्स का, दूसरा मॉडिफायर्स का. अब पहले बात आती है पैरेलल स्ट्रक्चर की. जब भी एक सेंटेंस आपके पास होता है, उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, नाउन, प्रोनाउन, मेन क्लॉज होता है, कई बार उसमें डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कई बार इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, कई बार कंजंक्शन होता है. तो आपको सेंटेंस में ना दो चीजें जरूर देखनी होती है. पहले, अगर सेंटेंस में मल्टीपल आइडियाज हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सेम है, तो वो सारे सेम फॉर्म में लिखे जाने चाहिए. इसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म. ठीक, ये समझ आया आपको? जैसे yes, ये वाला सेंटेंस है हमारा, इन द इंग्लिश क्लास डेविड लर्न टू रीड पोएम्स क्रिटिकली एंड टू अप्रिशिएट गुड प्रोज. yes, अब रीडिंग पोएम्स क्रिटिकली और अप्रिशिएट गुड प्रोज, ये दोनों आइडियाज या ये दोनों जो एंटिटीज हैं, इनकी इंपॉर्टेंस बराबर है. yes, डेविड sir. ने इंग्लिश की क्लास में ये दो चीजें सीखी हैं, लर्न की हैं ये दो चीजें.
पोइम्स को पढ़ना और गुड प्रोज को अप्रिशिएट करना, और इन दोनों को सेम फॉर्म में लिखा जाना चाहिए. अगर That's why दोनों, sir, first one is correct. फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन क्यों नहीं है? Because it is written he appreciated good prose. हाँ लेकिन उधर तो ही, हाँ मतलब एक हिसाब से आपका ये जो आपने चूज किया ना, दिस इज गुड. सी यहाँ पर टू रीड है, तो जो वर्ब है जी. उसके साथ टू लगा हुआ है, तो यहाँ पर वर्ब अप्रिशिएट है तो इसके साथ भी टू लगना चाहिए. Yes. यू आर करेक्ट हियर. दिस इज हाउ यू लुक फॉर पैरेललिज्म इन सेंटेंसेस. मॉडिफायर्स का जब कोई आता है ना आगे सेंटेंस, मैं आपको फिर बताता हूँ मॉडिफायर्स को कैसे देखना. लेट्स गो टू द थर्ड वन. Amy's QPA is higher than Ronnie, और Amy's QPA is higher than Ronnie's. अब आइडिया क्या होता है, हम जैसे अक्सर हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि यार अहमद का जो ग्रेड है वो अफनान से ज्यादा है या कम है. सेंटेंस का इंटेंशन ये है कि दो बच्चे हैं, उनका ग्रेड कंपेयर किया जा रहा है. इन दोनों में से सही कौन सा है? Have any idea about this, Mariam? So the second one is correct. How? When we are comparing two things, it should be in the same form. So in the second one, both has apostrophe s, so it is correct. Exactly. So this is a kind of sentence that we use regularly and we use very incorrectly in our day-to-day life. हम जब भी किसी को इस तरह का कोई सेंटेंस बनाते हुए देखते हैं ना, मैंने तो आज दिन तक हर एक को ये गलत करते हुए देखा है. इनफैक्ट while I was not knowing parallelism, I was also using this kind of sentence very incorrectly. मैंने टीचर्स तक को ये गलत करते हुए देखा है, मैंने अपने आप को ये गलत करते हुए देखा है, अपने पेरेंट्स को गलत करते हुए देखा है, और ये गलती हम अक्सर करते हैं. देखो यहाँ पर बात हो रही है एमी की और रोनी की. ये एमी और रोनी का क्यूपीए कंपेयर किया जा रहा है. सो क्यूपीए इन दोनों का तो अलग अलग हो सकता है, बट इन दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर है. लेट्स से एमी और रोनी भाई बहन है, या दोनों भाई हैं दोनों बहन हैं. सो लेट्स से दे बोथ आर सिबलिंग्स. तो अगर एमी के साथ अपोस्ट्रोफी एस है तो रोनी के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए. सो सेकंड वन इज करेक्ट. Let's go to another. This Amy or Ronnie, ये वाला correct है. Let's go to another one. Spending way too much money on his older car. Rohan's salary just wasn't enough. The first sentence is this. Second is spending way too much money on his old car. Rohan soon found he had used up his salary. अब इन दोनों में से कौन सा सही है? इसका आइडिया है किसी को? So the second one is correct. How? In the first one, they are saying that Rohan's salary was less, but in the second sentence, it is clearly said that since he has spent the money, he has used all his money salary. has, So आप yeah. बोल रहे हो कि कंटिन्यूएशन में दोनों सही हैं. देखो मैं अभी तो ये नहीं बताऊंगा आपको कौन सा सही है कौन सा गलत, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ. ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसमें पैरेललिज्म बिल्कुल सही है. स्पेंडिंग मनी और मनी इज गेटिंग लेस, ये दोनों सेम आइडियाज के इंपॉर्टेंस के चीजें हैं. बट इसमें अगर आप एक चीज देखोगे ना, स्पेंडिंग वे टू मच मनी ऑन हिज ओल्ड कार, दिस वन इज ए डिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंडेंट क्लॉज इसके मेन क्लॉज पे डिपेंड कर रहा है. रोहन सैलरी जस्ट वाजंट इनफ, या रोहन सोन फाउंड ही यूज्ड अप हिज सैलरी. तो इसमें जो चीज देखी जाएगी वो मॉडिफायर्स देखे जाएंगे. अब मॉडिफायर्स क्या होते हैं? मॉडिफायर्स इस तरह के वर्ड्स या इस तरह के क्लॉजेस या इस तरह के फ्रेजेस होते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे किसी चीज के ऊपर, किसी बात के ऊपर, या किसी इंसान के ऊपर, या किसी सब्जेक्ट के ऊपर. तो इसमें से करेक्ट जो है वो सेकंड वाला है. अब वो इंफॉर्मेशन किस वे में दे रहा है? यहाँ पर इनकरेक्ट वे में दे रहा है. क्यों? जो इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट है इन दोनों सेंटेंसेस का वो ये है कि पुरानी गाड़ी पे पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हो, जरूरत से ज्यादा. रोहन पुरानी गाड़ी पे जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, और रोहन को उसी की वजह से जल्दी पता लग गया कि उसकी सैलरी खत्म हो गई है पुरानी गाड़ी पे ज्यादा खर्च करने की वजह से. तो just give me 1 second, there is someone in the chat.
किन्हें उज़ैर आप क्या पूछ रहे हो? Unmute your mic. Sorry, sir. My mistake. मतलब आपको ये समझ आया ये मॉडिफायर्स है इसमें? Yes, sir. I got the idea. ठीक है, तो बात ये है कि पुरानी गाड़ी पे रोहन ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है और उसको जल्दी पता लग गया कि उसकी सैलरी खत्म हो गई इस वजह से। ये ज्यादा क्लियरली सेकंड सेंटेंस में शो किया जा रहा है। अब एक और सेंटेंस देखो, टू बिकम एन ऑनरेबल पॉलिटिशियन वन मस्ट एडमिनिस्टर कैंपेन फंड्स केयरफुली, एंड द सेकंड वन इज टू बिकम एन ऑनरेबल पॉलिटिशियन कैंपेन फंड्स मस्ट बी केयरफुली एडमिनिस्टर्ड। अब इन दोनों में से कौन सा सही है? देखो ये भी मॉडिफायर्स की फॉर्म है। दिस वन, टू बिकम एन ऑनरेबल पॉलिटिशियन, टू बिकम एन ऑनरेबल पॉलिटिशियन, दीज आर this portion of sentences, to become an honorable politician is a dependent clause। तो हमें मेन क्लॉज में ढूंढना है, वन मस्ट एडमिनिस्टर कैंपेन फंड्स केयरफुली या कैंपेन फंड्स मस्ट बी केयरफुली एडमिनिस्टर्ड। अब इस सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट इंटेंशन ये है कि अगर किसी को एक ऑनरेबल पॉलिटिशियन बनना है तो उसको कैंपेन की जो उसकी इलेक्शन की रैलीज वैलीज होती हैं, जो उसको फंडिंग मिलती है, उसको ध्यान से एडमिनिस्टर करना पड़ेगा, फिर जाकर वो एक ऑनरेबल पॉलिटिशियन बनेगा। उसमें उसको कोई घपला नहीं करना है। तो ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है। तो ये कॉन्टेक्स्ट किस सेंटेंस में ज्यादा अच्छे से बयान किया जा रहा है? एनीवन हैज आंसर? उज़ैर आप बताओ। मरियम? So the first one is correct. फर्स्ट वन इज करेक्ट। फर्स्ट में ज्यादा क्लियरली दिखा रहे हैं। यस, फर्स्ट वन इज करेक्ट। वन मस्ट एडमिनिस्टर कैंपेन फंड्स केयरफुली, बिकॉज जो इसका मेन क्लॉज है ना, अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे, कैंपेन फंड्स मस्ट बी केयरफुली एडमिनिस्टर्ड, तो इसका दिस थिंग हैज नथिंग टू डू विद इट, but this one must administer campaign funds carefully, this has lot of things to do with it. Let's go to another sentence. I like to listen to classical music doing my homework. I like to listen to classical music while I do my homework. इन दोनों में से कौन सा सही है? So the second one is correct. How? Because in the second one it is clearly said when they like to listen to the music. So in the first one they are doing when they are saying they are not clear about what when they are listening to music. They are confusing between classic music to listening and doing their homework. In the second one it's clear. Oh, absolutely, the second one is correct. Let's go to another example. He wanted 3 things out of college: to learn a skill, to make good friends, and to learn about life. पहला सेंटेंस तो ये है, और दूसरा सेंटेंस है he wanted 3 things out of college: to learn a skill, to make good friends, and learning about life. Which one is correct? So first one, sir. ये कौन थे? उज़ैर? Yes, sir. हाँ सही, फर्स्ट वन इज करेक्ट, बिकॉज लर्निंग ए न्यू स्किल, मेकिंग गुड फ्रेंड्स और लर्निंग अबाउट लाइफ, ये तीनों आइडियाज का इम्पोर्टेंस सेम है, इसलिए ये तीनों सेम फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ पर लर्निंग अबाउट लाइफ आईएनजी फॉर्म में है और बाकी दो टू प्लस वर्ब फॉर्म में है, टू लर्न टू मेक, जबकि यहाँ टू लर्न टू मेक और टू लर्न अबाउट लाइफ। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कोच वार्नर वाज अ ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट, a caring mentor and a wise friend. पहला ये सेंटेंस है। सेकंड, कोच वार्नर was a brilliant strategist, a caring mentor and friend. इन दोनों में से कौन सा सही है? Sir, first one. कैसे? Because all of the three qualities of Coach Warner have same importance and shall be in same context. और कोई आंसर? मरियम, आपका भी फर्स्ट वन ग्रीन वन ही करेक्ट है या यू आर गोइंग फॉर येलो? Yes sir, because in all three there is modifiers for all the things: strategist, mentor and friend. In the second one for friend it is not there, so first one is correct. सही है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। तीनों में मॉडिफायर, हालांकि ये पैरेललिज्म है,
ये तीनों आइडियाज स्ट्रेटेजिस्ट, मेंटोर और फ्रेंड, ये पैरेलल आइडियाज हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस सेम है, ये तीनों सेम फॉर्म में होने चाहिए। बट यहाँ पर ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, सो ब्रिलियंट इज अ मॉडिफायर फॉर स्ट्रेटेजिस्ट, केयरिंग इज अ मॉडिफायर फॉर मेंटोर, फ्रेंड के लिए वाइस है। जबकि यहाँ पर स्ट्रेटेजिस्ट के साथ ब्रिलियंट है, मेंटोर के लिए केयरिंग है, लेकिन फ्रेंड खाली है, यहाँ पर मॉडिफायर नहीं है। सो फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाइस ऑब्जर्वेशन। We found the film repulsive, offensive, and we thought it was embarrassing. First sentence is this. This is green. Yellow में है we found the film repulsive, offensive, and embarrassing. अब यहाँ पे कौन सा सही है? The second one is correct. उजेर? Second one. ठीक है, so second one is correct. The college cricket team only won 4 games in the last 3 years. ये थोड़ा सा tricky है, ठीक है? So this is green and yellow है the college cricket team won only 4 games in the last 3 years. देखो मैं आपको एक चीज बता दूं बिफोर यू जंप टू कंक्लूजन, सिर्फ एक वर्ड को स्वैप किया गया है, यहाँ पर ओनली वन है और यहाँ पर वन ओनली 4 गेम्स है, जिससे कि सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है। कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन है सेंटेंस की कि एक कॉलेज है, उसकी एक क्रिकेट टीम है जिसने पिछले 3 साल में सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं, 4 गेम्स जीती हैं। तो आपको ये बताना है किसी को कि यार कॉलेज की क्रिकेट टीम ने पिछले 3 साल में सिर्फ 4 ही मैच जीते हैं, सिर्फ 4 मैच जीते हैं। तो ये चीज आप किस सेंटेंस को यूज करके बताओगे? So second one. फर्स्ट वन क्यों नहीं? या कोई है जिसका आंसर फर्स्ट वन है? या सेकंड वन क्यों चूज किया आपने? सर बिकॉज हम बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 4 गेम जीते हैं, सिर्फ 4, सो आई चूज ओनली 4. तो देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, सेकंड वन इज Yes. करेक्ट एक्चुअली, ठीक है? सेकंड सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करोगे ना, तो इसकी ट्रांसलेशन हमारे कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन के साथ बिल्कुल सही बैठती है। Yes, sir. द कॉलेज क्रिकेट टीम वन ओनली 4 गेम्स इन द लास्ट 3 years। तो इसका मीनिंग है कि कॉलेज की क्रिकेट टीम ने सिर्फ 4 गेम्स जीती हैं पिछले 3 सालों में। अब आता है फर्स्ट सेंटेंस, द कॉलेज क्रिकेट टीम ओनली वन 4 गेम्स इन लास्ट 3 years। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, इसका मतलब होता है या इसका ट्रांसलेशन होता है कि कॉलेज की क्रिकेट टीम ने सिर्फ 4 मैच जीते हैं पिछले 3 साल में और कुछ नहीं किया। मतलब ना उन्होंने खाया, ना उन्होंने पिया, ना वो जागे, ना वो सोए, उन्होंने बस क्रिकेट खेला है और उसमें से सिर्फ 4 मैचेस जीते हैं। सो वो इवन वॉशरूम भी नहीं गए। यहाँ से मॉडिफायर का पता लगता है कि एक मॉडिफायर, और इस तरह के मॉडिफायर को मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कहते हैं। वन ओनली, पहले वर्ब है और फिर उसके आगे मॉडिफायर है, और यहाँ पर पहले मॉडिफायर है और फिर वर्ब है। जब भी आप किसी सेंटेंस में पहले मॉडिफायर को यूज करते हो और उसके आगे वर्ब लगाते हो, सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। आपको अगर देखना है ना, तो आप इन दोनों को गूगल ट्रांसलेटर में डालना, और ट्रिक ये है इसको पहचानने की कि आप उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो देखना ही देखना, जिनको उर्दू आती है उर्दू में देखना, जिनको हिंदी आती है हिंदी में देखना, जिनको तमिल आती है वो तमिल में देखेंगे, बट उसको रोमन इंग्लिश में भी जरूर देखना एक बार। ये ज्यादा एक्सप्लेन रोमन इंग्लिश में किया जाएगा। जब भी मैं एक मॉडिफायर के बाद वर्ब लगाता हूँ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैंने सिर्फ वो काम किया और कुछ नहीं किया। लेकिन जब भी मैं वर्ब के आगे मॉडिफायर लगाता हूँ, तो वो हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ सही बैठता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विदाउट ए प्लान फॉर द वीकेंड वी डिसाइडेड टू टेक द टिकट्स ऑफ ए मूवी, और विदाउट ए प्लान फॉर द वीकेंड ए मूवी सीम्ड ए गुड आइडिया एट दैट टाइम। अब कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन ये है कि वीकेंड आ गया, हमारा कोई प्लान नहीं था, तो इसलिए हमने मूवी देखना डिसाइड किया। ये आप किस तरह से डिसाइड करोगे इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है? Who will let me know?
फैसल? चलो मैं बता देता हूँ. Second one. सेकंड वन वाज करेक्ट. सेकंड वन वाज करेक्ट क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो रहा है. The children were quite happy by the monkeys swinging widely through the trees. Swinging widely through the trees. The children were quite happy by the monkeys. इन दोनों में से कौन सा सही है? उज़ैर? देखो इसका कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन ये है कि कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ मंकीज को देखा है वो जो पेड़ों से स्विंग कर रहे हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहे हैं, और ये किस्सा आपने बताना है. तो Sir, which one is first one, correct? sir. First one. Yes, sir. See, first one is absolutely correct. The children were quite happy by the monkeys. बच्चे बंदरों से खुश है. अगर आप इस सेकंड सेंटेंस को देखोगे ना तो सेकंड सेंटेंस में कॉन्टेक्स्ट का ऑपोजिट हो जाता है. स्विंगिंग वाइडली थ्रू द ट्रीज द चिल्ड्रन. अब रूल क्या है? ग्रामर का एक रूल होता है कि डिपेंडेंट क्लॉज के बाद पहला जो भी सब्जेक्ट आता है ना वो क्लॉज उसको रेफर करता है. यहाँ पर क्या है? स्विंगिंग वाइडली थ्रू द ट्रीज. तो यहाँ सिर्फ इतने से क्लॉज में आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन स्विंग कर रहा है ट्रीज में, बट आप अगर इसका मेन क्लॉज देखोगे, द चिल्ड्रन वर क्वाइट हैप्पी बाय द मंकीज. सो पहले आया द चिल्ड्रन, तो इसका मतलब ये जो काम है ये चिल्ड्रन कर रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के बिल्कुल उल्टा है. बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये काम मंकीज कर रहे हैं. और वो चीज यहाँ ज्यादा बेटर वे में दिखाया गया है. द चिल्ड्रन वर क्वाइट हैप्पी बाय द मंकीज स्विंगिंग वाइडली थ्रू द ट्रीज. क्लियर हुआ ये सबको? ये रूल हमेशा याद रखिएगा. डिपेंडेंट क्लॉज के फौरन बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा, डिपेंडेंट क्लॉज उसी को रेफर करता है. जैसा ये वर्ब है ना, स्विंगिंग वाइडली थ्रू द ट्रीज, सो स्विंगिंग इज अ वर्ब. इस वर्ब के बाद पहला नाउन है चिल्ड्रन. तो ये जो काम है ये बच्चे कर रहे हैं, जो कि गलत है. बच्चे नहीं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांगे मारते. So coming to the next sentence, Ahmed kept his store clean, neat, and he made it conveniently arranged. The second is Ahmed kept his store clean, neat, and conveniently arranged. अब इन दोनों में से कौन सा सही है? Second one is correct. Second one is correct because वो पैरेलल स्ट्रक्चर है. तीन आइडियाज हैं इसमें. स्टोर है एक जिसको नीट रखना है, क्लीन रखना है, और उसको कन्वीनियंटली अरेंज रखना है. तो ये तीनों आइडिया सेम इंपॉर्टेंस के, सेम वे में लिखे जाने चाहिए. This is parallelism, parallel structures of sentences. Professor Ali rewarded his students for working hard on the final project and going beyond the call of duty. Professor Ali rewarded his students for their hard work on the final project and going beyond the call of duty. Which one is correct? The first one is correct because working and going, which are the main focus of the sentence, are both in ing form in the first one. That Absolutely correct. Absolutely correct. So the first one is correct. क्योंकि दो आइडियाज हैं, हार्ड वर्क किया गया प्रोजेक्ट के ऊपर और आउट ऑफ द बॉक्स के हैं या फिर अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से ज्यादा स्कोप ऑफ ड्यूटी से बाहर निकल गए. दोनों आईएनजी फॉर्म में दिखाया गया, वर्किंग और गोइंग बियॉन्ड. नेक्स्ट इज देयर इज नथिंग आई लाइक बेटर देन फाइंडिंग ए गुड ट्राउट स्ट्रीम, सेटिंग अप कैंप एंड स्पेंडिंग ए कपल ऑफ डेज फिशिंग. ट्राउट स्ट्रीम होता है, ट्राउट मछली है, वो एक साथ तैरती हैं स्ट्रीम के उल्टा, तो हम उसको ट्राउट स्ट्रीम कहते हैं. Second is there is nothing I like better than finding a good trout stream, setting up camp, and to spend a couple of days fishing. Sir, first one, sir. First one because So all the three activities are written in the same way. हाँ ing form में है तीनों Yes. ideas, finding, setting और spending. Absolutely correct. Then this one, Mary visited her mother in hospital carrying flowers. अब ये वाला जो सेंटेंस है ना, हम इस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ में अक्सर गलत करते हैं. एक और सेंटेंस है कैरिंग फ्लावर्स, मैरी विजिटेड हर मदर इन द हॉस्पिटल. इन दोनों में से कौन सा सही है? देखो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मैरी की मदर बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैरी उनको जा रही है देखने, और जाते जाते वो फूल लेकर जा रही है साथ. सो विच वन इज करेक्ट, ग्रीन और येलो? yellow one is correct. येलो वन इज करेक्ट.
यार एक मिनट में चैट पे एक रिप्लाई कर दो, देयर इज समवन जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही. Forward try to join again and choose device option. ठीक है. तो अब आप मरियम ने क्या बताया? सेकेंड वन. उज़ैर? So seems the second one seems correct. सेकेंड वन इज करेक्ट. देखो फ्लावर्स लिए मैरी ने, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रूल बताया था कि व्हाट यू हैव टू लुक फॉर इज, आप डिपेंडेंट क्लॉज देखोगे और डिपेंडेंट क्लॉज में देखोगे कि उसके फौरन बाद आपके पास ये कौन सा आ रहा है, नाउन या सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है. तो वो नाउन या वो सब्जेक्ट जो होगा डिपेंडेंट क्लॉज उसी को रेफर करेगा. यहाँ पर है कैरिंग फ्लावर्स, तो कैरिंग फ्लावर्स इज डिपेंडेंट क्लॉज और वो मैरी को रेफर कर रहा है. तो ये कैरिंग फ्लावर्स जो पार्ट है दिस बिलोंग्स टू मैरी, सो दिस वन इज करेक्ट. अब इस तरह के मॉडिफायर को बोलते हैं डैंगल्ड मॉडिफायर. ये जो dependent clause है, this clause is acting as a modifier because this is giving you an extra information about Mary. Otherwise this clause is complete. Mary visited her mother in hospital. ये अपने आप में complete है, लेकिन आपको मैरी के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला क्लॉज कैरिंग फ्लावर्स. सो दिस इज ए डैंगल्ड मॉडिफायर. अब इसमें क्या गलती है? मैरी विजिटेड हर मदर इन हॉस्पिटल कैरिंग फ्लावर्स. अब पहली चीज है, देखो अगर आप कैरिंग फ्लावर्स को चेक करोगे ना, सो कैरिंग फ्लावर्स इज ईदर रेफरिंग टू हॉस्पिटल और टू मदर. कैरिंग फ्लावर मैरी के पास है भी नहीं, तो या तो ये फ्लावर्स हॉस्पिटल कैरी कर रहा है या ये फ्लावर्स मदर कैरी कर रही है. अब हॉस्पिटल तो बेजान है, सो हॉस्पिटल तो कैरी करेगा नहीं, सो ये फ्लावर्स मदर कैरी कर रही है, जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के बिल्कुल उल्टा है. इसलिए ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन गलत है. ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है. कैरिंग फ्लावर्स मैरी विजिटेड हर मदर इन द हॉस्पिटल. और इस तरह की कंस्ट्रक्शन हम अक्सर गलत करते हैं अपनी लाइफ में. लेट्स गो टू अनदर वन. व्हाइल राइटिंग ए स्पीडिंग टिकट द पेट्रोल कार बिगन कोस्टिंग डाउन द हिल. अब एक पेट्रोल कार है, मतलब एक पुलिस वाले की, ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी है. वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ी, एक उसने गाड़ी देखी जो बहुत तेज आ रही थी, उसको रोका और उसको चालान काट के दे रही है, उसको ओवर स्पीडिंग का चालान काट के दे रही है. अब वो पुलिस वाला गाड़ी से बाहर निकला होगा चालान काटने के लिए, तो उसकी अपनी गाड़ी पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू होगी अपने आप ही. उसने हैंड ब्रेक वगैरह नहीं लगाई थी, तो उसकी गाड़ी खिसकना शुरू हो गई अपने आप. ये चीज इसका कॉन्टेक्स्ट है इन सेंटेंसेस का. सो द सेकंड येलो सेंटेंस इज व्हाइल ही वाज राइटिंग ए स्पीडिंग टिकट द पेट्रोल कार बिगन कोस्टिंग डाउन द हिल. इन दोनों में से कौन सा सही है? The second one is correct. Okay, the second one is correct. Let's move on to another sentence. To reach the public car, to reach the public car from library, the road must be crossed. और second है to reach the public car from library, one must cross the road. इसमें क्या है? So second one. हाँ, one must cross the road. सो वन मस्ट क्रॉस द रोड, तो रोड के दूसरी पार लाइब्रेरी, एक साइड पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी, पब्लिक कार खड़ी होगी, और एक साइड पे आपकी लाइब्रेरी खड़ी होगी. एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स गो टू अनदर वन. व्हेन यू रिमेंबर व्हाट यू लर्न इन क्लास, योर टेस्ट स्कोर्स शुड इम्प्रूव. अब ये हम हिंदी में अक्सर एक दूसरे को एडवाइस देते हैं कि यार जब तुम याद रखोगे ना कि क्लास में क्या पढ़ा है, तो तुम्हारे टेस्ट के स्कोर अच्छे आएंगे, इम्प्रूव होंगे. हमारे पेरेंट्स भी हमें यही एडवाइस देते हैं. और इसी को बोलने का दूसरा तरीका है बाय रिमेम्बरिंग व्हाट यू लर्न इन द क्लास, योर टेस्ट स्कोर्स शुड इम्प्रूव. अब इन दोनों में से कौन सा सही है? और ये जब भी इंग्लिश में कोई बोलता है हमें गलत ही बोलता है. कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ गया सबको? इंटेंशन और कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हो कि जब तुम अपनी क्लास में पढ़ा हुआ याद रखोगे तो तुम्हारे टेस्ट के स्कोर इंप्रूव होंगे. तो ये चीज आपने बतानी है. अब ये चीज कैसे बताओगे? The first one is correct. फर्स्ट वन इज करेक्ट. और कौन है?
This was only Mariam. Uzair? Yeah, Faisal? See, we have Azim and I think the second one is the right one. second one. Faisal second बोल रहे हैं. See, we have Anfal and we have Azim as well. So, if you guys can answer. First one, sir. First one. First one is correct. अब correct क्यों है? आप इन दोनों को जब translate करोगे ना, so when you remember what you learn in the class, ये एक dependent clause है और ये clause depend कर रहा है इसके main clause पे. So main clause है your test score should improve. अब इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे, इसका ट्रांसलेशन बनता है एग्जैक्टली हमारे कॉन्टेक्स्ट की तरह कि जब तुम अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ याद करोगे, याद रखोगे, तो तुम्हारे टेस्ट के स्कोर इंप्रूव होंगे. लेकिन बाय रिमेम्बरिंग व्हाट यू लर्न इन द क्लास, योर टेस्ट स्कोर शुड इंप्रूव. इसको जब आप ट्रांसलेट करोगे तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी जब तुम अब क्लास में पढ़ाया हुआ याद करोगे या याद रखोगे, नहीं सॉरी, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ याद रखने की वजह से तुम्हारा टेस्ट स्कोर इंप्रूव होगा. लेकिन इसमें कैच ये है कि ये सेंटेंस जो है ना, येलो सेंटेंस, ये दिखाता है कि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है टेस्ट स्कोर इंप्रूव करने का. समझे आप? सो इसलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट है. Yeah, has everybody got what I'm trying to say, or is there any doubt? See, by remembering what you learn in class, your test score should improve. इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करोगे, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी कि अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ याद रखने की वजह से तुम्हारा टेस्ट स्कोर इंप्रूव होगा, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. ये सेंटेंस ये दिखा रहा है कि इसका अपनी क्लास में पढ़ाया हुआ याद रखने के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं. जबकि ये सेंटेंस हमारे कॉन्टेक्स्ट के साथ मैच करता है. हमारा कॉन्टेक्स्ट बोलता है कि जब तुम अपनी क्लास में पढ़ा हुआ याद रखोगे तो तुम्हारा टेस्ट स्कोर इंप्रूव होगा. So this is the idea behind these two sentences. Shall we move? Yes, sir. Okay. So coming to the next one, one must have concentration and patience to learn the game of chess. And the second is to learn the game of chess, concentration and patience are helpful. इन दोनों में से कौन सा सही है? देखो, कॉन्टेक्स्ट और आइडिया ये है, या कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन ये है कि चेस की गेम सीखने के लिए आपको कंसंट्रेशन और पेशेंस चाहिए. तो इन दोनों में से कौन सा सही है? First one is correct. Sir, first one is correct because they are emphasizing. हाँ ठीक है. तो फर्स्ट वन इज करेक्ट. सेकंड सेंटेंस क्या डिनोट कर रहा है? सेकंड सेंटेंस डिनोट कर रहा है कि सी टू लर्न द गेम ऑफ चेस, चेस की गेम सीखने के लिए कंसंट्रेशन एंड पेशेंस आर हेल्पफुल. कंसंट्रेशन और पेशेंस मददगार हैं. लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि चेस की गेम सीखने के लिए आपको पेशेंस और कंसंट्रेशन चाहिए. तो अगर कोई चीज हमें चाहिए तो वो मस्ट होती है, वो हेल्पफुल नहीं होती. One must have concentration and patience. So this is the correct way of writing this kind of sentence. Before serving the ice cream, the cake must be sliced. ये भी हम अक्सर रियल लाइफ में बहुत मिस्टेक करते हैं ऐसे सेंटेंस की. You must slice the cake before serving the ice cream. बर्थडे पार्टी चल रही है और आपको आइसक्रीम सर्व करनी है और आपको कहा जाता है कि आइसक्रीम सर्व करने से पहले केक काटा होना चाहिए, केक का कटना जरूरी है. तो इसको कैसे बताओगे आप इंग्लिश में? Sir, I think the second one is correct. This is Azim. Yes. Okay, Mariam. The second one is correct, sir. So second one is correct. Absolutely. I'm very happy to see everyone is giving correct answers. So next is when well written, any student will enjoy reading book. Yellow में है when a book is well written, any student will enjoy reading it. Idea ये है कि आपको बताना है कि अगर किताब अच्छे से लिखी गई है तो हर बच्चा उसको पढ़ना एंजॉय करेगा. ये कैसे बताओगे? Second one is it is clear. The book should be written Yes, properly. second one is absolutely correct. When a book is written well, अगर किताब अच्छे से लिखी गई होगी
any student will enjoy reading it. तो जब किताब अच्छे से लिखी गई होगी हर बच्चा उसको पढ़ना एंजॉय करेगा. फर्स्ट सेंटेंस है when well written, लेकिन क्या मतलब ये जो इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है well written और इसके आगे फॉरन आता है एनी स्टूडेंट, बुक लास्ट में आता है. सो when well written any student, दिस डिपेंडेंट क्लॉज इज रेफरिंग टू स्टूडेंट, जो कि पॉसिबल चीज नहीं है. स्टूडेंट लिखा हुआ नहीं होता, स्टूडेंट एक जीता जागता इंसान होता है. नेक्स्ट इज जनरली स्पीकिंग द DU कैंपस is attractive. Sorry, is खा लिया मैंने. Generally speaking, we find DU campus attractive. So which one is correct? DU is Delhi University. The second one is correct. देखो आइडिया है, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंशन है कि हमें ये बताना है कि जनरली स्पीकिंग अक्सर कहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस अट्रैक्टिव है. सो मरियम इज सेइंग सेकंड वन इज करेक्ट, व्हिच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज करेक्ट. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग और टेलिंग समवन दैट दिस कैंपस इज अट्रैक्टिव. क्योंकि हमें अट्रैक्टिव लगता है, वो है या नहीं है, दिस इज अ सब्जेक्टिव मैटर. अब जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे अट्रैक्टिव लग रही है वो किसी और को भी अट्रैक्टिव लगे. सो दिस इज अ सब्जेक्टिव मैटर. जनरली स्पीकिंग, और बोलता कौन है, बट देखो जैसे ये है ना, जनरली स्पीकिंग द DU कैंपस इज अट्रैक्टिव. डिपेंडेंट क्लॉज इज रेफरिंग टू DU. DU कैंपस कभी स्पीक नहीं करेगा. DU कैंपस इज अ नॉन लिविंग थिंग, सो नॉन लिविंग थिंग विल नॉट स्पीक. बट जनरली स्पीकिंग, और इसके फौरन बाद आ रहा है V. So V is a living thing which can speak. So this is a correct form. Next is his daily habits include jogging, walking, and to chat with all his old friends. Second is his daily habits include jogging, walking, and chatting with all his old friends. Which one is correct? Second one, sir. Second one is correct because same form में आ जाएगा, parallelism है. Next is to make a good score on general English test, some preparation is necessary. To make a good score on general English test, one should prepare well. इन दोनों में से कौन सा सही है? ये देखने में दोनों सही लगते One is correct. हैं. Which one? Second one is correct. First one, sir. अब जिन्होंने बोला फर्स्ट वन वो मुझे बताओ Second फर्स्ट one, वन sir. क्यों, और जिन्होंने बोला सेकंड वन वो बताओ सेकंड वन क्यों. So the second one is correct because in the first sentence, general English test needs preparation. Here in the second one, the person who is going to attend the test needs preparation. So the second one is correct. और फर्स्ट वन जो बोल रहे थे वो फर्स्ट वन किन्होंने Sir, in the first sentence, हाँ they are like it is helpful. Like in the previous question, it was mentioned helpful. So here it is written some preparation is necessary. What is helpful? But in the second question, they are emphasizing that one should prepare well to score good in the test. तो emphasize करना सही है या necessary सही है? So second one emphasize करना. चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ. सेकंड वन इज एक्चुअली करेक्ट, द फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट. व्हाई फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट? देखो क्या है, टू मेक ए गुड स्कोर ऑन द जनरल इंग्लिश टेस्ट सम प्रिपरेशन इज नेसेसरी. अब सम प्रिपरेशन इज नेसेसरी इज द मेन क्लॉज, और टू मेक ए गुड स्कोर ऑन जनरल इंग्लिश टेस्ट इज ए डिपेंडेंट क्लॉज. पहली चीज तो ये है, क्योंकि सम प्रिपरेशन इज नेसेसरी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. इसको अगर आप अकेला भी लिखोगे तो कंप्लीट सेंस बनाएगा. बट टू मेक ए गुड सेंटेंस, टू मेक ए गुड स्कोर ऑन द जनरल इंग्लिश टेस्ट, इट्स एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. दैट इज व्हाई इट इज ए डिपेंडेंट क्लॉज. अब बात आती है कि गुड स्कोर कौन बनाएगा. जैसा मरियम ने बोला था ना कि यहाँ पर टू मेक ए गुड स्कोर, प्रिपरेशन गुड स्कोर बना रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, टू मेक ए गुड स्कोर ऑन जनरल इंग्लिश टेस्ट वन should prepare well. So one जो है वो good score बना रहा है. So one is actually correct. एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं जिसमें पहले डिपेंडेंट क्लॉज आता है और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है,
तो या फिर पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और फिर डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज के बिल्कुल साथ वाला जो भी सब्जेक्ट होगा डिपेंडेंट क्लॉज उसको रेफर करेगा। इसलिए यहाँ पर गुड स्कोर जो है वो सम प्रिपरेशन बना रही है जो कि इनकरेक्ट है, और यहाँ पर गुड स्कोर जो है वो 1 बना रहा है, 1 शुड प्रिपेयर वेल। सो मिस्टेक सम और 1 की नहीं है, मिस्टेक इन दोनों की प्लेसमेंट की है कि कौन सी चीज कहाँ लिखी गई है, बस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. चलो नेक्स्ट चलते हैं। बोलो, वाज देयर एनी क्वेश्चन? चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव। आज इतना ही रखेंगे इस सेशन को। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट एवरीवन गिव द करेक्ट आंसर्स। एज ऑलवेज यू गाइस हैव बीन वेरी वंडरफुल। अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विच विल बी ऑन ट्यूसडे। आई प्रे कि मेरा ऑफिस का कोई काम ना आ जाए या मेरे को कोई और सेशन ना लेना पड़े। सो वी विल डेफिनेटली मीट ईच अदर वंस अगेन ऑन ट्यूसडे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी संडे। आईपीएल एंजॉय करो। बाय बाय।